15th of July, Chandrayaan-3 was placed in the precise elliptic parking orbit of size 170 by 36,500 kilometers. ISRO, in its mission plan of following the incremental trajectory approach, carried a total of 5 earthbound maneuvers. The fifth apogee-raising maneuver, which took place on the 25th of July, placed the spacecraft in an orbit of 250 by 1,27,000 kilometers. At the early hours of 1st August, the translunar injection was carried out, after which the composite module began the final leg of its long journey of nearly 3,84,000 kilometers for its rendezvous with the Moon. The TLI was a key step in the mission, enabling the spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the Moon. An orbit of 288 by 3,69,328 kilometers was achieved at the end of the translunar injection. जी हाँ, ट्रांसलूनर इंजेक्शन किसी भी इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए बहुत ही आवश्यक तो इस वक्त इसरो से आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे। चंद्रयान-3 अपने अंतिम पड़ाव पर है। 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान-3 LMV-3 अब अपने आखिरी पड़ाव पे है और सॉफ्ट लैंडिंग की ओर अग्रसर है। इस दौरान चंद्रमा की अधिकतम ऊंचाई को घटाकर वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत इस पूरी प्रक्रिया में propulsion मॉड्यूल और तमाम जो अनुसंधान हुए हैं उनका फल और मेहनत आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक क्षण है जिसके हम सभी साक्षी होने जा रहे हैं। लैंडर मॉड्यूल को लगभग 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित करने के बाद 17 अगस्त ये अंतरिक्ष विज्ञान में हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होने जा रही है और इस वक्त पूरी दुनिया जिसे देख रही है चांद पर हिंदुस्तान के इस मिशन को। 130 किलोमीटर के वैज्ञानिकों की अथक मेहनत और प्रयासों के चलते चंद्रयान-3 जो अब 40 दिनों की यात्रा के बाद चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। 3 चरणों में कुल ये प्रक्रिया होगी, जिसके बाद चंद्रयान-3 चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा। चंद्रयान-2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूअर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। Make it further complicated. Indeed. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of powered descent. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan-3 lander imager camera is being received continuously. The demonstration of soft landing on the Moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6,048 kilometers per hour without any aid from the thin and tenuous Moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the Moon's surface make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan-3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements, provision for full-level redundancies,
A plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test, and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system, and associated guidance, control, and navigation algorithms. The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site, since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2, the Chandrayaan-3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan-3 mission. चंद्रयान 3 का मिशन प्लान लगभग चंद्रयान 2 के तरह ही बनाया गया है। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा के निकटतम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गतिविधियां चंद्रयान 2 के तरह ही हों। और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और प्रोपल्शन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, LHBC, LDV और LHDAC का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है। LDV जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिराप यानी लेजर इनर्शियल रिफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा। ट्रैजेक्टरी जनरेशन जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC पेलोड अब तक काफी तो इस वक्त आप लाइव सुन रहे थे। इस बार का जो चंद्रयान 3 है उसकी डिज़ाइन में कौन से महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं और लैंडर्स में किस तरह के खास सेंसर्स को जोड़ा गया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए लैंडर रोवर अपने आप तैयार रहे और सुरक्षित रूप से लैंड कर सके, क्योंकि इससे पहले चंद्रयान 2 में कुछ ऐसी समस्याएं खड़ी हुई थी जिसको ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 में कुछ खास ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद अब चंद्रयान 3 पिछले मॉडल से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। हमारे साथ अब सीधा लखनऊ, हरदा और जबलपुर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम सीधा आपको लिए चलेंगे लखनऊ से। हमारे साथ इस वक्त शादाब सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। शादाब, एक ऐतिहासिक क्षण है जिसका हर कोई बेसब्री से शायद इंतजार कर रहा था। सालों की मेहनत थी और कहीं ना कहीं देश भर में इसका उत्साह देखने को मिल रहा है। लखनऊ में क्या हो रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज जो पूरे भारत में उत्सव मनाया जा रहा है और साथ ही प्रार्थना भी की जा रही है, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, हर जगह पर प्रार्थना की जा रही है, दुआ की जा रही है। वहीं अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए, लखनऊ में भी जितने भी मंदिर हैं, चाहे मजार हो चाहे मस्जिद हो, वहाँ पे भी दुआ की जा रही है और साथ ही चादर भी चढ़ाई जा रही है। वही आज लखनऊ के हनुमान चालीसा भी पढ़ा गया। एक प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा, वहीं कई गाँव पे दुआ भी मांगी गई। अब
कुछ ही समय बाकी है जब जो लैंडिंग होनी है उसको लेकर बस 6:02 पर लैंडिंग होनी है, जिसको लेकर कई जगहों पे एलईडी भी लखनऊ में लगाई गई है। उसके अलावा जो बच्चे हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, उत्साह है उनका, और साथ ही वो भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सही तरीके से लैंडिंग हो जाए। और हम आपको बता दें कि भारत एक पहला देश ऐसा होगा जब चंद्रमा के साउथ पोल पर उसकी लैंडिंग होगी। लैंडिंग के बाद क्योंकि इससे पहले भी 2 दिन पहले 21 अगस्त को रूस ने भी लैंडिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन लैंडिंग नहीं हो पाई थी, नाकामयाब रहे थे। अब वही भारत है, भारत अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत एक पहला ऐसा देश होगा जब साउथ पोल पर इसकी लैंडिंग होगी। वहीं अगर लखनऊ में कई जगह ऐसे है जहां पर प्रार्थनाएं की जा रही हैं, साथ ही जो बच्चे हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनको लाइव दिखलाया जा रहा है। वहीं एलईडी लगाकर बच्चों के, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चों के स्कूल खुले हैं, स्कूल में लगातार उनको बताया जा रहा है किस तरह से क्या तरीके थे जिस तरह वो पहुंचे हैं, क्योंकि ये बड़ा उत्सव वाला मामला है। क्योंकि जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं, वही अगर डायरेक्टर की बात की जाए, चंद्रयान 3 की डायरेक्टर की बात की जाए, वो भी लखनऊ से आती हैं। इसको लेकर कई लोग उत्साहित हैं और साथ ही दुआ कर रहे हैं कि सही तरीके से लैंडिंग हो जाए। जी अभिषेक। शुक्रिया जफर। शायद आप आपकी देर बने रहिए हमारे साथ। अब सीधा बात करेंगे जबलपुर में हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव जुड़े हुए हैं। शिव, जाहिर तौर पर आज चंद्रयान 3 मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है और उन चंद देशों में भारत अपना नाम जोड़ लेगा जो चांद पर अब तक ऐसी अचंभित कर देने वाली सफलता अर्जित कर चुके हैं। जाहिर तौर पर हम ये जानते हैं कि आने वाले समय में कोई भी देश जो आगे निकलना चाहता है और बेहतर बनना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो आगे हो, और कहीं ना कहीं उसकी प्रत्यक्ष तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं चंद्रयान 3 के रूप में। बिल्कुल, जो भारत है, भारत एक जो अंतरिक्ष की ओर एक अग्रसर हो रहा है लगातार। और आप देख सकते हैं सुबह से ही दुआओं का दौर जारी है। चंद्रयान को लेकर लगातार मंदिरों और मस्जिदों में प्रार्थना का दौर चल रहा है। आपने देख सकते हैं कैसे एक एलईडी टीवी लगाकर यहाँ पर दिखाया जा रहा था। अभी जो है यहाँ पर बारिश शुरू हो गई, इसलिए जो लोग हैं वो लॉन्चिंग अभी देख नहीं पाएंगे, तो लैंडिंग जो है नहीं देख पाएंगे। अभी मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे किस प्रकार से उनके द्वारा ये अभी मेरे साथ है सोनू बचवानी जी। किस प्रकार से देखते हैं ये जो लैंडिंग हो रही है? भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। जिस प्रकार से मोदी जी का संकल्प था, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि और भी कुछ दूसरे, इस मातृभूमि को लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया और आज उसी का परिणाम है कि आज हम चांद की ओर पहुंच रहे हैं। भारत चौथा देश होगा कि जो है जो भाई साहब जी देखिए एक अलग ही उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ चंद्रयान की लैंडिंग को लेकर लगातार जो लोग हैं वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि सफल लैंडिंग चंद्रयान की हो सके। जी निश्चित रूप से शिव बन रही है हमारे साथ। अब सीधा चल रहे हैं हरदा में हमारे साथ जफर अंसारी साहब जुड़ चुके हैं। जफर साहब, देश में जब भी कुछ बड़ा होता है जाहिर तौर पर हम देखते हैं नौजवानों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। चंद्रयान 3 विज्ञान और टेक्नोलॉजी की आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, सभी की नज़र है, पूरे विश्व की नज़र है इस मिशन को लेकर, जिसका कह सकते हैं सालों से हमने काफ़ी मेहनत करी है। आज कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल हमें मिलने जा रहा है। किस तरह का उत्साह हरदा के नौजवानों में है, क्या बातें हो रही है वहाँ पे? मुझे अभी तक बता दूं, लगभग सालों से जो प्रतिज्ञा की है, जो सालों की जो मेहनत का नतीजा था, चंद मिनटों दूर है उस नतीजे के जो है रिजल्ट आने में। चंद मिनटों में जो है तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो है तो चंद्रमा पे होगी और साउथ में होगी, और उसमें जो है तो भारत पहला देश बनेगा जो साउथ लेट पर जो है तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। हरदा के में लगातार जो है तो मंदिरों में और मस्जिदों में विशेष तरीके की पूजा की जा रही है चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए, क्योंकि हमारा देश जो है तो सब धर्मों के प्रिय, और सब धर्मों जब भी कोई ऐसी आपदा आती है तो लोग अपने अपने तरीके से अपने ईश्वर को याद करते हैं और अपनी उस आपदा से या उस मनोकामना की उस कार्य के पूरा होने की मनोकामना करते हैं। हरदा में भी मंदिरों में मस्जिदों में विशेष पूजा की गई। हमारे साथ हरदा के कुछ व्यक्ति मौजूद हैं, उन्होंने भी जो है तो नमाज पढ़ी। उन्होंने बताया कि नमाज में जो है तो विशेष पूजा की गई, विशेष दुआ की गई इस चंद्रयान लैंडिंग के। मुझे बिल्कुल अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुश्ताक है।
मैं मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। हमने ये चंद्रयान 3 की जब हमको मालूमात हुई कि हमारे 50 वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत करी और हम इसमें सफल हुए, ये बड़ी गौरव की बात है। और हमने मस्जिदों में दुआ भी करें इसके लिए कि अल्लाह ताला हमारे भारत की एक नंबर और अच्छा ऊपर ले आना, और चंद्रयान सफल किया, इसके लिए हम बहुत खुश है। हरदा वाले सभी बहुत खुश है। बिल्कुल जी, देखिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और बात करके कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने जो दुआ की है वो तो किस तरह गौरव अपने यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। आज भारत जो है तो चंद्रयान 3 के लैंडिंग के मौके पर, अपने नाम बताइए। मेरा नाम उज्जवल खान है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारा देश है जितनी कामयाबी कर रहा है, और ये बहुत बेहतरीन मौका है कि आज हमारे वैज्ञानिक का चांद पे पहुंचे, और इससे आगे ऐसा लगता है कि हमारा देश बहुत काफी उन्नति और तरक्की करेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो तो 50 वैज्ञानिकों की टीम ने लगातार जो है तो मेहनत करके इसको सफल बनाया, तो कैसा श्रेय आप मोदी जी को दोगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहना चाहिए? मोदी जी इस वक्त से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप देश तरक्की करे, इसमें हर इंसान की तरक्की है, और आज वैज्ञानिक का एक नया युग है हिंदुस्तान में, और इसके लिए धन्यवाद। और काफी देश हमारा उन्नति करेगा, इसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ बकवोट के भोपाल बकवोट के जिला अध्यक्ष मकसूद अहमद जो मौजूद है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जो है तो ऐसे कामयाबियों को देखते हैं और किस नजरिए से कामयाबी करते हैं, बताइए। आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने जा रहा भारत, बहुत खुश है। आज शहर मुसलमानों में बहुत अच्छी खुशी का माहौल है, और शहर की जनता में भी बहुत खुशी का माहौल है। जी अभी सर देखिए, जिस तरह इन्होंने बताया कि लगातार जो है तो मुस्लिम समाज के भी जो लोग हैं तो लगातार सोचते हैं, और मस्जिदों मंदिरों में विशेष दुआएं की जा रही हैं, विशेष प्रार्थना की जा रही है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए। अभिषेक जी जफर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, आधिकारिक जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। चंद्रयान 3 को लेकर ट्वीट सामने आया है। मिशन इज ऑल सेट टू इनिशिएट दी ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस। इसरो ने जानकारी दी है कि ऑटोमेटिक लैंडिंग के सीक्वेंस अब शुरू होने जा रहा है। तैयारियां हो चुकी है, बस अब इंतजार हो रहा है लैंडर मॉड्यूल से डेजिग्नेटेड पॉइंट तक पहुंचने का, और उसके बाद सीधे लैंडिंग की जो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इस वक्त पूरे विश्व लाइव प्रसारण देख रहा है। हमारे सहयोगी वैभव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, ऐतिहासिक क्षण है, चंद्रयान 3 अब से कुछ ही देर में चंद्रमा में सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है। वैसे तो जब हम न्यूज़ रूम में बैठते हैं या फिर कभी भी लाइव चर्चाएं होती है तो हमेशा अब तमाम मुद्दों की, चाहे पब्लिक इंटरेस्ट की हो, चाहे राजनीति की हो, तमाम मुद्दों पर बात होती है। लेकिन आज जो चंद्रयान 3 मून पर लैंड करने जा रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। जाहिर तौर पर ये काफ़ी तकनीकी विषय है और लोग बहुत उत्साहित हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमने 1975 में आर्यभट्ट से शुरुआत की थी, जब हमें याद है कि हम साइकिल से पहला रॉकेट मिशन जो हमने पूरा किया था, और उसके बाद फिर हमने चंद्रयान 1, फिर चंद्रयान 2 और आज हम चंद्रयान 3 तक पहुंचे हैं। और इससे लोगों की आम जिंदगी में भी टेक्नोलॉजी के जरिए एक बड़ा बदलाव आया है, और कहीं ना कहीं इसलिए आज ये चंद्रयान 3 का जो मिशन है ये इस देश के हर एक व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3 का यहाँ पे विक्रम लैंडर है जो चांद की सतह पर लैंड करने जा रहा है, उसके बाद जो प्रक्षेपण होगी अरे घुमाए पड़े हो। We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. तो बोला है भाई जहाँ देखना है वहीं जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है। Mission operations team is analyzing the data. दूसरी ओर पूरा देश We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. शुक्रिया वैभव, बने रहिए आप। आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। तो आप
रीजनल साइंस सेंटर से हमारे सहयोगी वैभव तस्वीरें दिखा रहे थे। कितना उत्साह देखिए युवाओं में, बच्चों में। वहाँ विशेषज्ञ जो है वो समझा भी रहे हैं कि किस तरह से लैंडिंग की पूरी प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ रही है। इस वक्त लाइव तस्वीरें इसरो ने लाइव तस्वीरें लगातार जारी कर रहे हैं कि किस तरह से अपने अंतिम पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहा है चंद्रयान 3। और उसके बाद आपको बता दें ये पूरा 14 दिन का मिशन होगा, जिसमें चांद की सतह पर जो रोवर है उसमें कई सारे जो पेलोड्स हैं, आपको साधारण भाषा में बताया तो पेलोड्स को वो उपकरण जिसके जरिए कई सारे एक्सपेरिमेंट चांद की सतह पर किए जाएंगे, वहां की जो तापमान है उसको लेकर, चांद की सतह पर जो मिट्टी है उसके अंदर कौन कौन से खनिज है उनको लेकर किया जाएगा, वहां के थर्मोस्टेट्स को लेकर किया जाएगा। तमाम अलग अलग तरह की वैज्ञानिक चीजें हैं जिनको लेकर वहां पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो मिशन है उसका उद्देश्य है कि चांद को और बेहतर तरीके से, चांद के वातावरण को और बेहतर तरीके से समझ सके, ताकि उसका वैज्ञानिक लाभ हमारी आम जिंदगी में वैज्ञानिक ला सके। और इसी को लेकर ये जो मिशन है चंद्रयान 3, जो अब अपने अंतिम पड़ाव में और अब से कुछ ही देर में सॉफ्ट लैंडिंग की ओर अग्रसर हो जाएगा। जैसा कि हमें अभी जानकारी मिल रही है इसरो के आधिकारिक सूत्रों से कि ALS की जो प्रक्रिया है वो इनिशिएट की जा चुकी है। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। शादाब, चलिए सीधे लखनऊ में बात करेंगे। शादाब हमारे साथ बने हुए हैं। शादाब, वैसे ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वैज्ञानिक सालों मेहनत करते हैं, अथक प्रयास करते हैं, एक तरह से उनकी ये तपस्या होती है। और जब हम कहते हैं कि एकदम जो सस्पेंस वाला मोमेंट होता है, जो सबसे नाजुक घड़ी होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक बार भगवान को याद कर ही लेते हैं कि प्रभु बस सफल करा दीजिए। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि ये एक उत्साह का मामला है कि ये जो साइंटिस्ट है वो लगातार इस पे सर्च करते हैं। सर्च के बाद जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो एक बड़ा मामला भी है, क्योंकि जिस तरह से उत्साह लोग यहाँ पे मना रहे हैं, उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि ये बड़ी बात है कि हमारा भारत वहाँ पे पहुँच रहा है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे लोग पूजा याचना भी कर रहे हैं। और साथ ही मंदिर में, अगर मंदिर की बात की जाए, वहीं मस्जिद की बात की जाए, चाहे वो चर्च हो, चर्च में भी मोमबत्ती जला के वो प्रार्थना कर रहे हैं। और साथ ही अगर मजार की बात की जाए तो मजार पर भी वो चादर चढ़ा रहे हैं और साथ ही मस्जिद में नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमारा भारत है, भारत अगर वहाँ पहुंचा हुआ है तो सही ठीक ठाक तरह से लैंडिंग हो जाए। लैंडिंग के बाद वहाँ पे जो भी निकल कर सामने आता है वो सामने आएगा। लेकिन अभी ये कुछ पल बाकी है जिसका इंतजार है। हालांकि जो लखनऊ में LED TV लगा दी गई है और साथ ही वहाँ पे लोगों को बैठने का, फिलहाल अभी जो लखनऊ का मंजर है वो ये है कि यहाँ पे बारिश अच्छी खासी हो रही है, जिसके चलते लोगों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी वो लाइव टेलीकास्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर स्कूली बच्चों की बात की जाए, वो भी स्कूल में मौजूद हैं, वो भी LED से लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। कुछ पल ही बाकी हैं, 6:04 पर लैंडिंग होनी है। उनका इंतजार किया जा रहा है कि किस तरह से लैंडिंग की जाएगी। वहीं अगर PM मोदी, नरेंद्र मोदी की भी बात की जाए, वो इस टाइम मौजूद साउथ अफ्रीका में है, लेकिन वो लाइव टेलीकास्ट वो आएंगे, वो भी वर्चुअल जुड़ेंगे लोगों से और साथ ही वो बात करेंगे। वहीं अगर लखनऊ में और लोगों की बात की जाए तो हर्ष का, उत्साह का माहौल है यहाँ पे। लेकिन प्रार्थना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग प्रार्थना कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि भारत एक ऐसा देश है जो अब वहाँ पे लैंडिंग करेगा, क्योंकि साउथ पोल पे अभी तक कोई वहाँ पे लैंडिंग नहीं हो पाई है। इसको लेते हुए एक बड़ा ये उत्साह का माहौल है और साथ ही एक जो प्रार्थना है वो भी जारी है। जी अभिषेक, शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। शादाब, चलिए अब शिव से बात करेंगे। शिव, वैसे तो अभी बात करें तो मध्य प्रदेश में काफी चुनावी माहौल चल रहा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि नेता भी अपने तमाम राजनीतिक कार्यक्रम छोड़ छाड़ कर बैठे हुए हैं, टकटकी बांध कर टीवी पे देख रहे हैं। तो सारे कार्यक्रम कैंसिल हो चुके, कहीं ना कहीं ये इतना महत्वपूर्ण क्षण है हिंदुस्तान के लिए कि सभी की नजर इस पर टिकी हुई है। शिव,
चलिए, लगता है कुछ तकनीकी समस्या है। हमारे सहयोगी हरदा से बने हुए हैं जफर साहब। जफर साहब, वैसे तो जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की तो एक वो दौर था जब स्पेस और साइंस की जब 1970 के दशक में जब बात की गई तो जो तमाम नेता थे उन्होंने कहा कि भारत एक गरीब देश है, अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी और रॉकेट पर इन्वेस्ट करेंगे, उससे पहले देश की जो दूसरी जरूरत है उन पर ध्यान दें। लेकिन तब के जो नेता थे और दूरदर्शी नेता थे तब उन्होंने फैसला लिया था और उसके बाद हमने देखा किस तरह से इसरो की स्थापना हुई, लगातार कई सारे अनुसंधान हुए। पहला मिशन लॉन्च हुआ 1975 में, आर्यभट्ट, फिर इनसेट और फिर हम देखते ही देखते आज चंद्रयान 3 तक पहुंच चुके हैं। हालांकि चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के टाइम खुद इसरो में मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन आज हालांकि ब्रिक्स सम्मेलन के चलते प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हो पाए, लेकिन वर्चुअली जुड़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यह देखने को मिला है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में 140 करोड़ की आबादी वाला यह देश जो डेवलपिंग कंट्री है, हमारी कई सारी ज़रूरतें हैं, हमारी कई सारी खामियां भी हैं। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो 190 देशों के बीच भी भारत जैसा इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश आज विश्व के अगर अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में बात करें तो टॉप 4 देशों में आकर खड़ा हो गया है। और अगर ये मिशन सफल हो गया तो शायद इकलौता ऐसा देश बन जाएगा जो चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश बन जाएगा। जी अभिषेक जी, बिल्कुल देखिए, ये जो आज जो देश तरक्की कर रहा है और जो पिछले जो राजनेताओं ने बात करी थी, आज उसका जवाब आज जो है तो चंद्रयान 3 के लैंडिंग करवा के उस बात का जो है जवाब दिया है। जो भारत टॉप 10 में जो है शामिल हुआ है, तो आज हमारे जो देश के 50 वैज्ञानिक और लगातार जो वैज्ञानिक देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए सोच रहे हैं, ये उन्हीं की मेहनत और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है, जो दिन रात मेहनत करी और मेहनत करके जो है तो आज चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग करवाने में वह कामयाब होते नजर आ रहे हैं। और उन राजनेताओं का भी जहाँ पर और नेताओं का भी जो है तो कहीं ना कहीं सहयोग है, जिन्होंने देश की तरक्की और उन्नति के लिए यहाँ अपने सोचा है और देश की तरक्की उन्नति के बारे में लगातार वो सोचते हैं और लगातार जो है तो देश को आगे बढ़ाने के अग्रसर वो प्रयास करते हैं। और लगातार जो है तो युवा को और सभी लोगों टेलीविजन पे कब तक की लगा ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं कब 6 बजे की और चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी और उसका लाइव जो है तो प्रसारण देख सकेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो है तो साउथ अफ्रीका के दौरे पर है, वो भी लगातार जो है तो वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और जोड़ेंगे और देश के लोगों को संबोधन करेंगे। अभी तक की शुक्रिया जफर, बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त की अगली अपडेट पर। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता रहे हैं। इसरो ने लैंडिंग की कमांड दे दी है, यानी कि अब आखिरी पड़ाव की ओर है चंद्रयान 3 का लैंडिंग रोवर। थोड़ी देर में चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा चांद की दक्षिणी सतह पर। लैंडिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ALS ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस जो है वो शुरू हो जाएगा। पावर डिसेंट शुरू, जानकारी मिल रही है। और सबसे अच्छी बात यही है कि जो पूरी तय प्रक्रिया थी उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लैंडर की जो वेलोसिटी है वो तय मात्रा में कम हो रही है, जैसा कि अनुमान लगाया गया था। हमारे साथ इस साइंस सेंटर से बने हुए हमारे सहयोगी वैभव, बस अब कुछ ही मिनट रह गए हैं और कुछ ही देर बाद सॉफ्ट लैंड कर जाएगा। चंद्रयान 3 अपने आखिरी पड़ाव पर है। इस वक्त वहां पर किस तरह का उत्साह देख रहे हैं आप? बिल्कुल अभिषेक, ऐतिहासिक पल। And the altitude is reduced to near 3 minutes. उस ऐतिहासिक पल को आने में केवल चंद मिनट का वक्त बाकी है। आज जिले के रीजनल सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो स्टूडेंट पहुँचे हैं वो इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनना चाहते हैं, वो इस पल को महसूस करना चाहने के बाद वो पल का देखने को मिलता है, क्योंकि मून मिशन के तहत चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग होना, उसका जो विक्रम लैंडर है वो देख सकते हैं उसकी सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जब वो लैंड हो जाएगा तो उसके बाद प्रज्ञान रोवर जो है वो चांद की सतह पर उतरेगा और चांद से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां हम तक पहुंचाएगा। तो साउथ पोल पर
जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने चांद की सतह पर इस प्रक्रिया की शुरुआत की है। तो पीएम मोदी हालांकि ब्रिक्स सम्मेलन में गए हुए हैं, वहाँ से वो उस पूरे ही जो कार्यक्रम है इस पर निगाहें बनाए हुए हैं और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण पल है क्योंकि लगातार इंतजार किया जा रहा है। ही सीखा है चंद्रयान 3 की मिशन की सक्सेस का जो रास्ता 3,84,000 किलोमीटर। इस तरीके से ये जो काउंटडाउन है उसकी शुरुआत हो चुकी है और ये तालियां बज रही है पिछले के उसमें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तिरंगा झंडा लहराता हुआ लैंडर ही तय करेगा कि उसकी उतरने की जगह। अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिजिटल एनिमेशन के जरिए समझाया जा रहा है कि इस वक्त चांद की सतह पर किस तरह से रोवर लैंड करने जा रहा है। इसरो में उत्साह देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत ही सफलता बस अब कुछ ही क्षण बाद और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. आपको साधारण भाषा में समझाए, वर्टिकल डिसेंट का ये मतलब है कि जो रोवर है अब उसकी गति को धीमा करके अब जो रोवर का मुंह है वो ऊपर की तरफ है और ये चांद की सतह से बहुत करीब है और अपनी तय गति के साथ नीचे लैंड करने जा रहा है। और जिस तरह का उत्साह इसरो में देख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम जो पड़ाव है जिनसे होकर अब तक चंद्रयान 3 गुजरा है वो अब सफलता के बेहद करीब आ चुका है। और जो भी अपेक्षाएं थी, तो सबसे ज्यादा बोलते हैं महत्वपूर्ण क्षण है यहाँ पर गति का संतुलन सबसे ज्यादा जरूरी है। गति और बैलेंस बने रहना लैंडिंग रोवर का सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं वो सफल रहा है और सतह के बहुत करीब आ चुका है रोवर, जो कुछ ही देर में अब चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा। And the lander module has begun its descent towards the landing site. और जैसा कि हम सुन रहे हैं कि जो लैंडर मॉड्यूल है उसकी गति तय मापदंड के तहत कम होती चली जा रही है और धीरे धीरे अपने स्क्रीन पे देख जो चंद्रयान है वो सतह के करीब आते जा रहा है। लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। मात्र 150 मीटर की ऊंचाई पे है और पूरी तरह से चंद्रयान जो है वो नियंत्रण में है। वर्टिकल डिसेंट फेज 2 which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकेंड हायोरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at
zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering and now we are approaching the moon's surface. साधारण भाषा में कहे तो इस वक्त सिर्फ 2 इंजन पे चंद्रयान नीचे आ रहा है और सतह के बहुत करीब है। हावरिंग को साधारण भाषा में कहे कि जब हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला होता है तो वो एकदम स्थिर हो जाता है, उसमें गति शून्य हो जाती है। तो गति शून्य हो चुकी है, अब धीरे धीरे बस सतह के करीब जाता जा रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. हर किसी की नजर इस मिशन पर आज जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल चांद्रयान लैंड कर चुका है चंद्रमा की सतह पर। ऐतिहासिक उपलब्धि हिंदुस्तान के लिए। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन इसरो श्री एस सोमनाथ। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. चलिए आपको सुनवाते हैं इसरो के प्रमुख क्या कह रहे हैं। मिशन सफल हो चुका है, चंद्रयान लैंड कर चुका है। I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था।
नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी।
हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इसरो के वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि के लिए उनकी पीठ थपथपा रहे थे। दक्षिण अफ्रीका से लाइव जुड़े थे और उन्होंने पूरे देशवासियों को और खासतौर से इसरो के जिन वैज्ञानिकों के ने इसमें तक मेहनत की उनकी तारीफ की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इसरो से, जहां पर आज हर वैज्ञानिक खिलखिला रहा है। सालों की वो मेहनत जो आज रंग लाई है। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड कर चुका है और भारत ऐसा करने वाला चौथा और दक्षिणी सतह पर लैंड करने वाला दुनिया का एक लौता देश बन गया है। डायरेक्टर कल्पना and the mission operations director Srikanth, and the satellite was built at your house satellite center, Shankar and the director. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to land, to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to the near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management
right from Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan-3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan-3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly. And I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan-3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan-2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan-3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously. And this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan-3 team. And of course with the guidance from our Chairman ISRO, our directors and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Now, Chandrayaan-3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan-3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. तो हम हमारे वैज्ञानिक को सुन रहे थे जो प्रोजेक्ट में हिस्सेदार थे और वो बता रहे थे कि चंद्रयान आज सॉफ्ट लैंड हुआ है, लेकिन हमारे तमाम वैज्ञानिक चंद्रयान को सांसों की तरह ले रहे थे। खाना पीना से लेकर उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया था और उसको आज ये सफलता मिली है और इसरो पूरा जश्न में आज झूम रहा है। ना सिर्फ इसरो बल्कि पूरा देश इस सफलता के लिए देश के वैज्ञानिकों का आभार जता रहा है। हमारे सहयोगी साइंस सेंटर से लगातार बने हुए हैं। वैभव, कुछ देर पहले सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है और पूरे देश में जश्न का माहौल है। हम जब बात करते हैं वैज्ञानिक सफलता की, तो जैसा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सिर्फ भारत की सफलता नहीं है, ये विश्व के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षण है कहीं ना कहीं। और जिस तरह से हमने अलग अलग देशों के मून मिशंस देखे हैं
आज भारत भी चांद की सतह पर लैंड हो गया है और आने वाले समय में जो वैज्ञानिक अनुसंधान चांद की सतह पर भारत करने जा रहा है उसके भी कई मानवीय पहलू हैं और मानवता पर इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। ये ऐतिहासिक सक्सेस मिलती है तो मून मिशन के तहत चंद्रयान 3 के तहत जो विक्रम लैंडर जो है पूरी दुनिया की निगाह सक्सेस को देखें। सबसे पहले अपने इसरो पे जो साइंटिस्ट है उनको सेलेक्ट करना चाहूँगा। जैसे उन्होंने भी एक सोल्जर्स की तरह ही दिन रात अपना एक करके जो हमारा तिरंगा है उसको चंद्रमा के ऊपर लहराने में इतना बड़ा योगदान दिया है, तो दिल से मैं अगेन उनको सेलेक्ट करना चाहूँगा। सोल्जर आप जो सीमा पर लड़ते हैं सोल्जर वो है जो नई नई टेक्निक्स लेकर आ रहे हैं चंद्रयान की जो मिशन का काम। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो सीमाओं पे लड़ता है वही सोल्जर है। हमारे देश में हर कोई सिंगल मैन आर्मी है, वन मैन आर्मी है। जो साइंटिस्ट है वो तो सोल्जर से भी एक कदम आगे ही है, जो अपने वहाँ पे एक दिन रात लैब के अंदर जो अपना रिसर्च करते हैं, जो पूरे वर्ल्ड के लिए एक सुविधा का और एक गौरव भरा पल प्रोड्यूस करते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि बहुत कम इतिहास ऐसे पल देखने को मिलते हैं। हम जिस तरह से दबा रहे हैं विक्रम लैंड किया चांद की सतह पर, जैसे अभी देख रहे थे हम कि जैसे विक्रम लैंडर जो हमारा लैंड करा था तो दिल की धड़कनें ऑब्वियसली तेज हो गई थी। जैसे हमारा कुछ अच्छा एक मोमेंट होता है जो एक सोल्जर के नाते, तो इतनी धड़कनें उस टाइम पे तेज नहीं होती, पर आज ज़्यादा ही प्राउड महसूस करने के उसमें हमारा दिल की धड़कनें तेज हो रही है। ये गर्व का क्षण है और ऐसे क्षण बहुत ज़्यादा नहीं आते। और हम उनसे बात करेंगे कि क्या कहेंगे सक्सेस को लेकर, जिस तरीके से चंद्रयान को जो सक्सेस मिली है, बेटा क्या कहेंगे, क्योंकि जो आज मिशन सक्सेस हुआ है बहुत कम इस तरह के पल देखने को मिलते हैं। बहुत हो जाता है और भी है उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो इस पल को डिफाइन करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि भारत के स्टूडेंट्स हैं वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कहीं मेहनत करने के बाद लाइव प्रसारण चल ही रहा है और सक्सेस की बात कर रहा है। और क्योंकि हर किसी पूरे विश्व की सम्मेलन में यहाँ से जो कार्यक्रम को देख रहे हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को लाइव संबोधित किया, जो वैज्ञानिक है उनकी जो मेहनत है उसे सराहा भी है। और हम भी जो और भी स्टूडेंट्स हैं जो वैज्ञानिक हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो जो कह रहे थे। राकेश सिंह करेंगे साथ में, सर क्या कहेंगे मिशन जी हमारी मेरी टीम बताएगी क्या मेहनत की, क्या कहेंगे आप चंद्रयान के मिशन के बारे में? चंद्रयान 2 का मिशन हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जो चंद्रयान 2 से हमने नाकामयाबी हासिल की थी, जिसमें हमें बहुत सी जानकारी मिली और उस नाकामयाबी के भरोसे ही हमने चंद्रयान 3 का मिशन ये अभी पूरी तरह सक्सेसफुली हमने लैंड किया है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएंगी क्योंकि विक्रम लैंड हो गया और जो प्रज्ञान रोवर का बाहर आएगा इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन किस तरह से काम आ सकती है? ये इन्फॉर्मेशन के भरोसे हम जो दूसरा मिशन है चंद्रयान 4 या फिर इससे मिली हुई जानकारी, जो हमें पानी की खोज, खनिज की खोज, ये सब जो जानकारी है इसके भरोसे हम दूसरे मिशन के बारे में और तो आगे भी हम देखेंगे इस तरह की सक्सेस, क्योंकि बार बार इस तरह के पल देखने को नहीं मिलते। ऐतिहासिक पल है। साउथ पोल पर तो शायद भारत पहला देश है। साउथ पे उतरना ये भारत के लिए बहुत बड़ी एक कामयाबी है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई, अभी भी काम चल रहा है वहाँ पे। अभी जस्ट हमने एक सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली की है। अब इसके आगे क्या होगा ये अभी धीरे धीरे पता चलेगा। जैसे जैसे डेटा हमें चंद्रयान 3 से मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली हम आगे रिफरेंस करेंगे। बिल्कुल, ये केवल शुरुआत है और शुरुआत के बाद भी अभी हमें बहुत आगे बढ़ना है। दे रहा है
पूरा देश इस वक्त शुभकामनाएं दे रहा है, क्योंकि जो भारत ने उपलब्धि हासिल की है वो रातों रात उपलब्धि हासिल नहीं की है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की। जो चंद्रयान 2 था, जो मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था किन्हीं कारणों से, उसकी कमियों पर चर्चा की गई, उसकी कमियों पर आगे बढ़ने की कोशिश की गई। तो ये पल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पल के ही गवाह बनने के लिए यहाँ पर सोल्जर्स भी आए थे, स्टूडेंट्स भी आए थे, स्कूली छात्र भी आए थे, उनके पेरेंट्स भी आए थे और हाथों में तिरंगा लेकर वो गर्व के साथ कह रहे थे भारत माता की जय। और यहाँ पर वंदे मातरम के नारे भी हमें सुनाई दिए। तो आज अभिषेक बेहद महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि इतिहास साक्षी बना है। और ये ऐतिहासिक पल इसलिए भी है क्योंकि पूरे देश की निगाहें, पूरे विश्व की निगाहें इसरो पर टिकी हुई थी, क्योंकि इसके पहले का जो मिशन था वो अनसक्सेसफुल रहा था, लेकिन इस बार मिशन सक्सेसफुल रहा है। और पीएम मोदी ने भी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव। तो जाहिर तौर पर हर किसी को गर्व है इस क्षण पे, और चंद्रयान 3 अब सॉफ्ट लैंड कर चुका है। आगे बहुत सारे महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट हैं जो चांद की सतह पर होंगे। इन तस्वीरों से आप इस उत्साह का अंदाजा लगा सकते हैं। देश का हर एक नौजवान, बूढ़ा, वैज्ञानिक, जो साधारण, मैं ये कहूँगा कि साधारण ज्ञान जो विज्ञान का रखते हैं, तकनीकी ज्ञान नहीं रखते, वो भी उत्साहित हैं और ये जानते हैं कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है उस देश में, जिस देश में शायद आज से 5 दशक पहले तक शायद कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि भारत इस तरह का कोई कारनामा कर दिखाएगा। ये तो खैर एक शुरुआती पड़ाव है, इसके बाद और भी कई सारे मिशन हैं। ये चंद्रयान 3 जो चंद्रयान 2 की, हालांकि उसे विफलता जरूर कहा गया, लेकिन चंद्रयान 2 में जो खामियां थी उससे आगे बढ़कर चंद्रयान 3 ने जिस तरह से सफल लैंडिंग की, ये बेहद गर्व का क्षण है। और ये गर्व का क्षण इसलिए भी है क्योंकि जो LMV-3 रॉकेट का इस्तेमाल इस मिशन में किया गया वो एक इंडिजीनियस रॉकेट था, यानी कि भारत के ही वैज्ञानिकों द्वारा इस रॉकेट का निर्माण किया गया था, जिससे इस रोवर की लॉन्चिंग हुई। साथ ही साथ अगर आपको बताएं कि जो सेंसर का इस्तेमाल हुआ है आखिरी के पड़ाव में लैंडिंग के लिए, ALS सेंसर जिसका इस्तेमाल किया गया, वो भी इंडिजीनियस है। हमारे वैज्ञानिकों ने खुद इस सेंसर को बनाया है, जिसके चलते वो खुद जो लैंडिंग रोवर है उसकी पोजीशन को एनालाइज करके सेफली लैंड कर सकते हैं। और यही कारण भी है एक बड़ी सफलता का, चाहे आप प्रपल्शन ले लें, चाहे सेंसर्स ले लें, तमाम ऐसी दूसरी चीज़ें ले लें, इनमें हमारे वैज्ञानिकों ने जिस तरह से काम किया है। और जैसा कि हम एक शब्द का बार बार इस्तेमाल करते हैं, आत्मनिर्भरता, जिस आत्मनिर्भरता के साथ हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी अथक मेहनत और सालों के प्रयास से खुद टेक्नोलॉजी डेवलप कर चंद्रयान 3 का निर्माण किया, और उसी का नतीजा है कि आज चांद की सतह पर हम पहुंचे हैं। ये 14 दिन का मून मिशन है। 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद आज आखिरकार चंद्रयान 3 चांद की सतह पर अपने तय समय पर और जो तय प्रक्रिया के तहत है वो लैंड कर गया है। 14 दिन के मून मिशन में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे चांद की सतह पर, और इन एक्सपेरिमेंट से जो नतीजे निकल कर आएंगे उससे मदद मिलेगी आगे के जो मिशन है इसरो के, उसमें भी। और ये तो मैनलेस मिशन था, लेकिन आने वाले समय में जो इसरो का सपना है, जिसको लेकर सालों से जो प्रयास कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारे देश के एस्ट्रोनॉट भी चांद पर जाएंगे। चलिए अब आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, योगी कि सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था, एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ आज की सफलता के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई, और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं।
जय हिंद। चलिए आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलेंगे सीधा शहडोल। हमारे सहयोगी राहुल राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आज ये देश साक्षी बना है इस ऐतिहासिक क्षण का, जहां हमने देखा कि किस तरह से सालों की मेहनत और वैज्ञानिकों के प्रयास रंगराई है। क्या हो रहा है शहडोल में, किस तरह का उत्साह? विक्रम में लैंडिंग कर ली है सफलतापूर्वक। इसको लेकर के सवेरे से यहाँ पर तैयारी की गई थी। हालांकि आज शहडोल में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जनदर्शन कार्यक्रम भी था। यहाँ पे कई उन्होंने कार्यक्रम की घोषणा की है। उसके बावजूद प्रशासन ने यहाँ पे कई प्रकार की व्यवस्था की थी, जहाँ पे लोगों ने लाइव चंद्रयान लैंडिंग को यहाँ पे देखा है। आपको बता दूं कि शहडोल में सवेरे से मस्जिदों में लगातार पूजा अर्चना की जा रही थी कि भारत अपने दक्षिण ध्रुव में पहली बार देश बने और लैंडिंग वहाँ पे सफलतापूर्वक कर दी। मेरे साथी मौजूद है यहाँ पे, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं गजेंद्र सिंह परियार। आप बताएंगे गजेंद्र सिंह कि क्या है, क्या अनुभव आपको और कैसा आपको लग रहा है? जी राहुल, के लिए आखिरी के 20 मिनट जो थे सर जो थे वो बहुत ही क्रिटिकल थे, हमारे लिए बहुत ही टेंशन भरे थे। लेकिन अब जो है जो सफलता भारत को मिली है, 4 महाशक्तियों में भारत शामिल हो गया, अमेरिका, रूस और चीन के साथ भारत ने सफलतापूर्वक पहला खुशी हमको मिली। आतिशबाजी करने खुशी मनाई भी है और शहडोल के लिए और भारत के विशिष्ट के लिए विश्व स्तर पर भारत का नाम बुलंद करना शहडोल के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए, इसरो के साइंटिस्ट के लिए, जितने भी लोग हैं सबके लिए बड़ी गर्व की बात है। और निश्चित तौर पर अभी आतिशबाजी का मनाया भी गया है, आगे भी मनाया जाएगा। और ये चंद्रयान 3 जो राहुल जी लैंड हुआ है, पिछली बार ड्रॉप हो गया था, किसी कारण से नहीं लैंड हो पाया था। बहुत सैड मोमेंट था वो हम लोगों के लिए। चौथी महाशक्ति, इस समय चौथी महाशक्ति सबसे बड़ी बात मोस्ट ऑफ द पार्ट थे जो भारत में तैयार किए गए थे, जो बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व का क्षण है ये। इसके अलावा आप ह्यूमन एक्टिविटीज का वहाँ पे ह्यूमन मिशन, मानव मिशन की तैयारियां की जाएंगी, चट्टान और मिट्टी के सफल मिलेंगे। उसके लिए निश्चित तौर पर आधारित होंगे, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। इसरो के साइंटिस्ट बहुत ही नेक और बहुत अच्छा कार्य किया है, जिससे भारत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। ये आपको बता दूं, मेरे साथी और भी हैं यहाँ पे, सोनू खान जी हैं। सोनू खान जी, आप क्या बोलेंगे, आप बताएं। मैंने सबसे पहले इसरो के साइंटिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो कड़ी मेहनत करके सफल काम किया है। साथ ही साथ बहुत ही अच्छा कार्य है ये, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। काफी लोग यहाँ पे साइट है, कड़ाके के साथ वाहन दर्शन किया, सबके पीछे बधाइयाँ दी है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपको बता दूं, लगातार सवेरे से यहाँ पे आसपास के जिले की पब्लिक आई थी। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जनदर्शन किया है, आज कई सारी घोषणाएं की। उसके बावजूद शहडोल में खुशी का माहौल था। लोगों ने यहाँ पे पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी गई है। आप देख रहे हैं शहडोल हृदय स्थल जयस्तंभ चौक पर है, यहाँ पे लगातार लोग खुशियां मना रहे हैं। मेरे साथ मौजूद स्थानीय निवासी अखिलेश मिश्रा जी। मैं बताना चाहूँगा कि भारत देश के लिए बहुत ही खुशी का दिन है आज, पूरे भारत घूम होता है। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल। चलिए अब सीधा चलेंगे जफर साहब, काफी देर से हरदा में लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जफर, चंद्रयान 3 अब मून पर सॉफ्ट लैंड कर चुका है। आगे मिशन के 14 दिन के कई सारे पड़ाव है, लेकिन आज हम जिस तरह से देख रहे हैं कि लैंडिंग के बाद पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। देश आज झूम रहा है। एक ऐसा देश जो कई सारी समस्याओं से आगे निकलकर आज एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना है, जो शायद आज से 4 या 5 दशक पहले हम जिसकी शायद कल्पना भी नहीं करते थे। वहाँ पे किस तरह का उत्साह है लोगों में? चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की जो है सफलता के बाद भी वैज्ञानिकों ने अपना हौसला नहीं हारा और लगातार जो तो प्रयास करते रहे।
चंद्रयान 3 का निर्माण करा। और आज चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग जो है तो हो गई। इसी लैंडिंग के बाद जो है तो लगातार लोगों में आप देख सकते हैं खासा उत्साह यहाँ नजर आ रहा है। एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और माता पिला रहे हैं और लगातार जो है खुशियां यहाँ पर एक खुशी का जाहिर कर रहे हैं। मानो किसी त्योहार की तरह जो इस दिन को लोग मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान लोग भी मौजूद है, मिठाई भी खिला रहे हैं लगातार। भारत माता की जय के यहाँ पर जो है तो नारे, भारत माता की जय के यहाँ पर जो है तो नारे लगाए जा रहे हैं। अभिषेक जी, हमारे साथ कुछ नौजवान भी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह का उनके दिलों में उत्साह है और जो है तो आज इस दिन को किस तरह से वो देखते हैं। जी अपना नाम बताइए। हो रही है अपना देश आज मुकाम पर पहुंच चुका है। हम लोग ने बच्चों से सुनते हुए अगली चीज को मेरा की चीज होती है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, बल्ले पाँव हो चुकी है और वो किसी की बात है भारत माता की वंदे मातरम। ये देखिए मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल हमारे साथ कोई और एक युवा है, उनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार से। क्या नाम है आपका? गोल्डी अडवाणी। क्या नाम है? गोल्डी अडवाणी। आज चंद्रयान की सफल लैंडिंग जो है तो हो गई और कई सालों का प्रयास था, वैज्ञानिकों की लगातार सफल प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है तो सफल लैंडिंग हुई और उन्होंने लगातार जो है तो वैज्ञानिकों के संपर्क में रहे और वैज्ञानिकों ने जो है सफल लैंडिंग करा। किस प्रकार आप इस तरफ क्या लगता है आपको? ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा साइंस इतना आगे बढ़ चुका है और अभी जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं इस पे वो भी बहुत अपना प्रयास कर रहे हैं इस पे और बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये सब सक्सेस हो जाएगी जो काम कर रहे हैं इस पर। बिल्कुल हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि जो है तो ये हमारे साथ एक युवा है, उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे। आज सफल लैंडिंग जो है तो वकील साहब जो है तो सफल लैंडिंग हुई, किस तरह के साथ देखते हैं उसको? हमारे भारत में बहुत इस दिन को आपने एक पर्व के तौर पर बनाया भी देखा, दूसरों को मिठाई खिलाई, माला पहनाई, किस प्रकार से देखा? बहुत ही शानदार पहले देखा है तो हमारे मिशन कमेटी की ओर से भी है जो वर्क की ओर से साइंटिस्ट सयाम हुसैन, ये हमारे साथ एक साइंटिस्ट सयाम हुसैन भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे किस प्रकार जो है तो उन्होंने इस लैंडिंग को देखते हैं और जो भारत ने एक बड़ा मकाम पूरे देश में जो है तो हासिल किया है उसको किस तरह समझते हैं, बताइए नाम। जिस तरह से आप सभी को पता है आज हमारे देश में चंद्रयान जो है वो चांद में लैंड हो चुका है। भारत की इतनी कोशिशों के बाद आज जो हमारे को मुकाम मिला है वो हर देशवासियों को गर्व की पहचान, हमारे देशवासियों को गर्व से चिन्ह हुआ है। और आज हमारे हिंदुस्तान में जो चंद्रयान 3 लैंड हो चुका है चांद के ऊपर, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं सभी देशवासियों से चाहूंगा कि खूब खुशियां मनाएं और अपने अपने जो वैज्ञानिकों ने लगातार प्रयास किया, जो हमारे साइंटिस्टों की टीम थी उनको मैं बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करी और उनकी मेहनत इतनी सफल रंग लाई है कि आज हिंदुस्तान मेहनत उनकी थी और गर्व हमें हो रहा है। बहुत हमारे नसीब की बात है कि आप हिंदुस्तान में हैं और तो हमारा जी अभिषेक जी बिल्कुल देखिए लगातार जो है तो यहाँ पर लोग देख रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और एक गौरव का पल जो है तो यहाँ महसूस कर रहे हैं। और एक जो क्षण था बहुत ही अहम था और कई सालों से जो है तो क्षण का इस पल का इंतजार किया जा रहा था और लोगों की जो है तो निगाह लगातार जो है टेलीविजन पर टिकी हुई थी, टेलीविजन को बार बार देख रही थी कि कब जो है तो वैज्ञानिकों का जो है तो वैज्ञानिकों की तो मेहनत रंग आई और कुछ जैसे हमने जो है तो सफल चंद्रयान 3 की लैंडिंग वहां हुई। अभिषेक जी जाहिर तौर पर चलिए जबलपुर चलते हैं। शिव विश्वकर्मा, शिव आज ये ऐतिहासिक क्षण है, चंद्रमा पर लैंड करने के बाद हम जिस तरह से देख रहे हैं लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जबलपुर में आप जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं उनकी क्या राय है, वो किस तरह से देखते हैं इस देश की इतनी बड़ी उपलब्धि को? जी मैं बताना चाहूँगा चंद्रयान जो 3 है जो इसकी सफल लैंडिंग के बाद जबलपुर में भी उत्साह का माहौल देखा गया, जहां हम अभी सदर कैंट इलाके में है जहां पर लगातार जो है मिठाई बांटने का दौर और डांस का दौर देखा जा रहा है और लगातार जो भाजपा के जनप्रतिनिधि है वो इस चीज को उत्सव की तरह मना रहे हैं। कहीं न कहीं वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का आज उन्हें फल मिला है और पूरे जो चंद्रयान है जो चंद्रमा में लैंड कर चुका है उसके बाद देखा जा रहा है पूरे देश में एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिव, आप सभी सीईओ का बहुत बहुत शुक्रिया। शहडोल से हरदा से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े थे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर यह एक ऐतिहासिक क्षण है और भारत ने जो वैज्ञानिकों ने कठोर तपस्या की उसका फल कहीं ना कहीं आज मिलने जा रहा है
और अब कुछ घंटे बाद जो विक्रम लैंडर है उसमें से विज्ञान रोवर निकलेगा और जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो शुरू होंगे। कई सारे सवाल चांद को लेकर है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे देश विश्व भर में जो वैज्ञानिक है कि क्या चांद की सतह पर पानी है, और इसकी भी जांच की जाएगी। चांद की सतह पर जो मिट्टी पाई जाएगी उसमें कौन कौन से खनिज है और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई, ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिसको लेकर अनुसंधान होने जा रहे हैं। और आने वाले समय में इस मिशन से और क्या क्या चीज़ें निकलकर सामने आती हैं ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।